Hi everyone. Today in this particular video we would like to discuss about a particular specific question which is likely to come in the exams, and rather also it's very important. uh, the students, since the class is bilingual, बहुत सारे हमारे हिंदी भाषी भी हैं, हिंदी बोलने वाले भी हैं, तो हम इस पे बाइलिंगुअल के रूप में यूज़ करेंगे। और इस कॉन्टेक्स्ट में ये हमारा जो क्वेश्चन है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एनालाइज एक करके कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव में महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स को करें। सो इन दिस सेंस वी वुड लाइक टू talk about this, how this particular question can be of 90 marks or 50 marks for the university, college, or like competitive exams, and how it can be very useful when we talk about like competitive perspective between Karl Marx and Mahatma Gandhi. What are the differences and similarities between the two? We would like to highlight that particular aspect, and essentially you will see how best that would be useful from exams perspective, and how maximum marks can be fetched by using this technique. And then uh, let us see and let us start like how this particular question can be handled. So let's start from the part of introduction, and that is from Karl Marx first. From many perceptions, people call Karl Marx like father of Marxism. Even somebody, or like even it is being heard telling by people, a pop of communism, with so many names like. But of course he is the father of Marxism. He is called, and the world knows him by plenty of names, such as a political theorist, social revolutionary, or a political theorist, social revolutionary, an economist, sociologist, and a German philosopher. Yes, that was Karl Marx, who was from Germany and born on May 5, 1818, from Trier. He enjoyed a great understanding with his best friend, German thinker Friedrich Engels. Karl Marx became well known by the three-volume Das Kapital, the Communist Manifesto, and 1848 pamphlet. He cast enormous influences on the subsequent generations of the contemporary world. डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं हिंदी की बात करूँ कि कार्ल मार्क्स, सबसे पहले हम इसमें इसके उत्तर को लिखने के लिए परिचय से स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि वो मार्क्सिज्म की बहुत ज़्यादा महत्ता है और वो पिता भी कहलाते हैं मार्क्सवाद के। एंड दुनिया उसे बहुत सारे नामों से जानती है कि वो पॉलिटिकल थियरिस्ट भी थे, सोशल रिवोल्यूशनरी भी थे, एंड इकोनॉमिस्ट भी थे, सोशियोलॉजिस्ट भी थे, जर्मन फिलोसफर भी थे। यस, कार्ल मार्क्स को बहुत सारे नामों से दुनिया जानती है। और वो कार्ल मार्क्स पैदा हुए थे 5 मई 1818 को तीर में, और उनका जो बेस्ट फ्रेंड था वो जर्मन थिंकर थे, फ्रेडरिक एंजल्स थे। एंड कार्ल मार्क्स, उन्होंने कई सारी किताबें लिखी, लेकिन उनमें से जो उनकी सबसे अच्छी कुछ किताबों में से हैं, जैसे दास कैपिटल है, 3 वॉल्यूम्स उनके, एंड देन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, एंड देन 1848 में उसके पॉम्फलेट है, एंड देन लाइक ही कास्ट, उनके जो काफ़ी पर्सपेक्टिव्स हैं, काफ़ी इन्फ्लुएंसेस हैं, काफ़ी दूसरों पे वो जनरेशन सोच आज तक चले आ रहे हैं किसी न किसी फॉर्म में। उनकी बहुत ही महत्ता मानी जाती है। एक प्रकार से आप समझ लो, ही रियली शुक द वर्ल्ड, वॉट लाइक ही कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड इज अमेजिंग। इसके बाद हम लोग चलते हैं, नाउ लेट अस गो टू गांधी, एंड दैट्स अबाउट मोहनदास करमचंद गांधी. He is well known to the world, better by the name of Mahatma Gandhi, the apostle of peace, love, harmony, a philosopher, a statesman, born on 2nd October in Porbandar, India in 1869. He was by profession an Indian lawyer who showed the world non-violent path leading to victories. Later, Mohandas Karamchand Gandhi was nicknamed Mahatma Gandhi. Mahatma or Mahatma means the great soul, and he became the spiritual leader of the masses and the father of the Indian independence. By virtue, he was anti-colonialist and non-violent.
Gandhi was born a fearless advocate for the backward and voiceless people for the entire stay in South Africa before he came to India. डियर फ्रेंड्स, अगर बात करें गांधी जी के बारे में तो हम सभी जानते हैं राष्ट्रपिता हमारे, और दुनिया उसे बहुत अच्छे नामों से जानती है। पीस, लव, हारमोनी, शांति, फिलोसोफर, स्टेट्समैन, क्या कुछ नहीं वो रह चुके हैं। 2 अक्टूबर पोरबंदर इंडिया में पैदा हुए 1869 में, और बाय प्रोफेशन लॉयर थे, जिसने दुनिया को बताया कि नॉन वायलेंट के रास्ते से भी बहुत कुछ हो सकता है, दुनिया की जीत दिला सकती है। और बाद में मोहनदास करमचंद गांधी जी का नाम, एक उसको महात्मा का नाम आपको दिया गया, जिसका मतलब होता है द ग्रेट सोल, बड़ी आत्मा। और वो एक स्पिरिचुअल लीडर भी थे मास के लिए, जो बाद में देश के राष्ट्रपिता भी कहलाए। वो शुरू से अपने स्वभाव से, अपने माइंडसेट से एंटी कॉलोनिस्ट थे और नॉन वायलेंट थे। गांधी जी ने कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लिया। वो हमेशा ही अच्छे काउज के लिए, शांति के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहे। और जब तक साउथ अफ्रीका में रहे वहाँ भी काफ़ी स्ट्रगल किए, वहाँ भी उन्होंने एक रास्ता दिखाया लोगों को। सो उन्होंने सिविल राइट्स और लिबर्टी, ह्यूमैनिटीज़ के लिए उनकी बातें की। लॉ ग्रेजुएट, लॉ के क्षेत्र से रहे हैं, लंदन में भी उनकी शिक्षा हुई, और गुजरात से बिलोंग करते थे आप। तो गांधी जी and then Karl Marx, we got like a small brief introduction. Now let us see some important books of famous books of Gandhi, what he has written. उनमें से नंबर 1, एन ऑटोबायोग्राफी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ये बहुत इसका नाम सुनते हैं कभी, बहुत इनका फेमस है ये। देन इंस्पिरेशनल थाट्स, एंड देन गांधी ऑन नॉन वायलेंस, देन इसेंशियल गांधी, हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल, देन पावर ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, सेलेक्टेड राइटिंग्स, मोहनदास गांधी इसेंशियल राइटिंग्स। तो बहुत सारे ऐसे नाम थे जो गांधी जी, इन्होंने किताबें लिखी हैं, राइटिंग्स उनकी हैं, इतनी सारी, काफ़ी फेमस हैं। अब हम लोग नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेंस इज दैट्स अबाउट लाइक क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलरिटीज़ हैं बिटवीन कार्ल मार्क्स एंड गांधी में। लेट्स नॉट टॉक अबाउट लाइक डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज़ बिटवीन गांधी एंड कार्ल मार्क्स। नंबर 1, addressing the question of what we saw, like we have to analyze the comparative perspective. The answer focuses upon the differences and similarities of the two great thinkers like Karl Marx and Mahatma Gandhi. जब हम प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में इसमें हम एड्रेस को करते हैं इस क्वेश्चन को, तो इसमें समानता और अंतर दोनों के बीच में देखते हैं। एंड देन both of them in one or other form make their perspectives and ideologies related to their temporal and spiritual beliefs, their socio-political thought processes। दोनों में ही अपने अपने विचार हैं। कोई क्लास स्ट्रगल की बात करता है, क्लास वार की बात करता है, कोई उसके अपोजिट बातें करता है। बोथ ऑफ देम नॉट ओनली हाईलाइटेड द सोसाइटी, rather you can say they led a roadmap of the future course of action, how the society should look like. Gandhi ji, a great visionary he was, and a spiritualist and pragmatist with humanitarian approach। दोनों में ही काफ़ी समानताएं और काफ़ी विभिन्नताएं भी रही हैं। कोई समाज को लेके अपने अपने नज़रिए से उनको देखता है, तो कोई समाज के दूसरी दिशा में देखता है। गांधी जी इस परिप्रेक्ष्य में काफ़ी दूरदर्शिता वाले व्यक्ति थे और स्पिरिचुअल भी थे, मानवता पे काफ़ी उनका रुझान था। उसी परिप्रेक्ष्य हम कार्ल मार्क्स की अगर बात करें, कार्ल मार्क्स ऑन द अदर हैंड ए ग्रेट रिवॉल्यूशनरी हु फर्मली बिलीव्ड द सोसाइटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द क्लास डिवीजन। लेकिन जब कार्ल मार्क्स की हम बात करते हैं तो वो एक बहुत बड़े रिवॉल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे, जो विश्वास करते थे समाज में कि समाज में क्लास डिवीजन है। दे बोथ शेयर्ड थॉट्स ऑफ इराडिकेशन ऑफ इनइक्वालिटी फ्रॉम द सोसाइटी। दोनों ही चाहते थे कि समाज में इनइक्वालिटी ख़त्म हो, समानता आए और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वो ख़त्म हो। दे वांटेड टू सी द सोसाइटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड एक्सप्लॉयटेशन फ्री। दोनों का दृष्टिकोण ये था कि समाज में एक्सप्लॉयटेशन जो चल रहा है वो ख़त्म हो और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट की भावना सभा में दिखाई पड़े। एंड बोथ ऑफ देम वर ऑल टाइम ग्रेट सोशियो पॉलिटिकल फिलोसोफर्स एंड ब्रॉट द टेंजिबल चेंजेस इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है कि दोनों ही एक बहुत बड़े सामाजिक और राजनीतिक रूप से फिलोसफर थे, जिन्होंने काफ़ी
अपने समय में भी और समय के बाद भी काफ़ी बहुत महान बर्ताव उन्होंने महान बदलाव देश में और बाहर भी उनकी वजह से आए, बदलाव देखे गए। Then there was a different approach regarding religion. Gandhi, being a reformist, was a great spiritualist and wanted to attach high value to the religion. अगर गांधी जी की बात करें तो गांधी जी रिलीजन पे काफ़ी फोकस थे, रिलीजन उन पे उनका अटैचमेंट था, और वो रिलीजन को एक अपने हिसाब से उसको उनका एक नज़रिया था, दृष्टिकोण था देखने का। जबकि कॉल मार्क्स ऑन द अदर हैंड टॉक्ड रिलीजन एज नथिंग बट द ओपियम ऑफ मासेस। लेकिन अगर आप कॉल मार्क्स की बात करें तो कॉल मार्क्स ने अपने आप में उन्होंने कभी भी रिलीजन को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया, और कॉल मार्क्स कई अर्थों में अगर देखा जाए तो उन्होंने एक नशा, धर्मों को नशे का नाम दे दिया उन्होंने। And then, from Marx's perspective, religion was a big social evil, something that needed to be done away with at any cost. He did not bring religion into the mainstream of lives of the people as Gandhi did. यहाँ पे अगर मार्क्स की बात करें, मार्क्स के पर्सपेक्टिव की बात करें, तो उसके लिए रिलीजन एक बहुत बड़ा सोशल इविल था, सामाजिक बुराई थी, और जो धर्म था वो सामाजिक बुराई के रूप में देखा जाता था। जिसको कॉल मार्क्स उसको पसंद नहीं करते थे, रिलीजन पे विश्वास नहीं करते थे, और रिलीजन को मेन स्ट्रीम में लाना नहीं चाहते थे, चाहे जो भी बिलीफ हो। परंतु गांधी जी रिलीजन को लेके इनका अपना एक दृष्टिकोण था, वो अपने हिसाब से देखते थे। Let us see further now writings of Karl Marx. Karl Marx has many famous books, some of them like the Communist Manifesto, Das Kapital, Economic and Philosophic Manuscript of 1844, Wage Labor and Capital, then Poverty of Philosophy, Selected Writings, A Contribution to the Critique of Political Economy. तो कई सारे नाम है, कई सारे फेमस बुक्स हैं कॉल मार्क्स के, जो हमने बातें कही भी उनमें से सारे वो बुक्स हैं, और भी हैं परंतु हमने कुछ खास जो बुक्स थे उनके नाम बताए। कंटिन्यू करते हुए इसको, लेट्स कंटिन्यू अबाउट द कॉम्परेटिव स्टडी अबाउट दिस टू पर्टिकुलर थिंकर्स। Gandhi did not believe in temporal gratifications while Marx was a materialist, almost an opposite role of each other. अगर गांधी जी की बात करें तो वो चूँकि स्पिरिचुअल भी बिलीव करते थे, और दिशा और दशा जो भौतिक रूप से देश के अंदर हो रही थी उनकी, वो चीज़ों पे नज़र उनकी थी। जबकि मार्क्स एक मेटलिस्ट पे विश्वास करते थे और क्लास स्ट्रगल पे उनका ज़्यादा भरोसा था। मार्क्स बिलीव्ड इन मेटलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री एंड मोर फोकस वाज ऑन क्लास स्ट्रगल एज बिटवीन रिच एंड पुअर। मार्क्स रिच और पुअर के ऊपर उनका काफ़ी फोकस था उनका। जबकि alienation was one of the important standpoints of Karl Marx's writings. He said alienation was making the workers impoverished or poor, and they were being made away from everything of the society. Alienation का इनका एक अपना मुद्दा था और अपना स्टैंड पॉइंट व्यू था कॉल मार्क्स के राइटिंग का, और उनका कहना था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लोगों में काफ़ी एलिनेशन आया और वो लोगों को अपने रूट कॉज से काफ़ी दूर लेते जा रहे हैं, वो भी एक चिंता का विषय है। एंड देन इट वॉज एन आयरनी दैट द वर्कर्स हु यूज टू प्रोड्यूस वेल्थ वर themselves poor and not able to maintain their livelihood properly. ये भी एक बहुत अफसोस की बात थी। वर्कर्स जो कि खुद पैदा करते थे चीज़ों को, वही उन अपने वेल्थ से वंचित हुआ करते थे, और वो गरीब से गरीब होते जाते थे, वो आगे नहीं बढ़ पाते थे। इन एडिशन टू दिस हम कुछ इसमें जो इम्पोर्टेंट कोटेशन है, फेमस कोटेशन हैं कॉल मार्क्स के, उसकी चर्चा करेंगे। लेट अस सी नंबर 1, ही सेज रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस, एंड नंबर 2, द हिस्ट्री ऑफ ऑल प्रीवियस सोसाइटीज हैज़ बीन द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल्स, एंड थर्ड, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चांस। Then next is from each according to his abilities to each according to his needs. And then history repeats itself, first as tragedy, second as farce. And further, when we talk about like his famous quotations, then we find revolutions are the locomotives of history, and last words are for fools who have not said enough. तो इसमें ये आपकी फेमस कोटेशंस थे कॉल मार्क्स के, जिन्होंने रीजन के बारे में बातें की, हिस्ट्री के बारे में बातें की, वर्कर्स की यूनाइट के बारे में बातें की, और उनकी कैपेसिटी की बातें की, फिर रिवोल्यूशन की बातें की, एंड देन इनके कई और भी कोटेशंस हैं, लेकिन ये सम ऑफ देम वर वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशंस। लेट अस कंटिन्यू अबाउट
comparative perspectives. In this, Mahatma Gandhi was more cautious regarding the conditions of the workers. Therefore, he introduced Gram Swaraj, or in other words, he referred to it as village self-dependence. The perception of Gandhiji was very clear. He too blamed the rich class for the apathy of the poor being exploited in towns and cities. Owing to the indifference of the rich industrialists, the poor used to get poorer. यहाँ पे गांधी जी की बात अगर कहें तो आपका काफ़ी शुरू से ही अटैचमेंट और प्रॉपर फोकस था विलेज लाइफ को लेके, विलेज सेल्फ इंडिपेंडेंस को लेके। और गांधी जी भी वो चाहते थे कि गरीबों को भी उसका अधिकार मिले और समाज में एकता हो, समाज में एटलीस्ट समानता हो, और जो गरीब हैं वो थोड़े से ऊपर आएँ और जो अमीर क्लास है वो भी अपना कंट्रीब्यूट करें। Gandhiji laid great emphasis on the importance of the village and their significance for the betterment of the human lives in rural areas. जहाँ तक गांव की बात करें तो गांधी जी में उनका अपना विश्वास था कि गांव का विकास होना चाहिए। While Karl Marx underlined, unless the oppressor and the oppressed or the exploiter stops exploiting the workers, the conditions of the working class will not be conducive. कॉल मार्क्स की अपनी अंडरस्टैंडिंग थी कि जब तक के जो रिच क्लास हैं, बुर्जुआ क्लास हैं, वो प्रोलेटारियत को एक्सप्लॉइट करते हैं, वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करते हैं, ऑपरेस जो ये हैं, ये एक्सप्लॉइटर हैं, ये एक्सप्लॉइट करते हैं, ऑपरेसर और एक्सप्लॉइटर एक्सप्लॉइट करते हैं, दैट मस्ट बी स्टॉप्ड। In many cases, Karl Marx is considered a conflict theorist who painted the contemporary society of his time exploitative in nature. Dear students, in this connection, if you see, like कॉल मार्क्स को अगर आप देखें यहाँ पे तो एक कन्फ्लिक्ट थ्योरी के रूप में इसको पेंट किया गया है कि वो किस तरह से उन्होंने एक्सप्लॉइटेशन पे, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी पे और क्लास वॉर पे उन्होंने बातें कही हैं। देन मोर सो corresponding to the nature of the thought process of Karl Marx, there is a need of decay of the overwhelming supremacy of the industrialist classes. फिर उनका कहना है कि स्टेट की मशीनरी इतनी मजबूत बना दी गई है कि उनके सामने एक व्यक्तिगत जो अधिकार उनका वो कम पड़ जाता है। According to him, the landowners were the great source of the coercion, force and exploitation of the working class, and that need to be done away with. यहाँ पे अगर देखें तो जो लैंड ऑनर्स हैं वो काफ़ी कोर्सन करते थे, फोर्स करते थे, एक्सप्लॉइटेशन करते थे वर्किंग क्लास के, और काफ़ी दिक्कतें होती थी उनके कारण। From his point of view, violence was nothing but the oppressed tool and even the midwife of history. कॉल मार्क्स कहते हैं कि वायलेंस तो एक प्रोफेशन है, रिच क्लास का जो वो क्या करते रहे हैं, conflicting and contrasting prejudices are accountable for the social change in the society of the industrialization. आज की बात करें तो जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, सोशल चेंज उसमें आया है, लोगों में काफ़ी डिफरेंसेस हुए, क्लास गैप्स बढ़े हैं, रिच एंड पुअर में गैप्स काफ़ी हुए हैं, और देन एक्सप्लॉइटेशन वर्कर्स के होते रहे। ऑन द अदर हैंड, गांधी जी वॉज वोकल रिगार्डिंग द स्वीपिंग इक्वालिटी, इफ पॉसिबल एंड फेयर ट्रीटमेंट नीडेड टू बी मेटेड आउट। पर गांधी जी विश्वास करते थे कि ऐसा कुछ हो जहाँ पे समानता हो, जहाँ पे प्यार मोहब्बत हो, लोग सही तरीके से रहें। अगर हम कुछ गांधी जी के फेमस कोटेशन की बातें करें तो लेट अस सी सम फेमस कोटेशंस ऑफ महात्मा गांधी। नंबर 1, बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। नंबर 2, इन ए जेंटल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड। नंबर 3, ए मैन इज बट ए प्रोडक्ट ऑफ हिज थाट्स, what he thinks he becomes. Number 4, happiness is when what you think, what you say and what you do are in harmony. फिर बात आती है, the weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. An eye for an eye only ends up making the whole world blind. You must not lose faith in humanity. Humanity is an ocean. If a few drops of the ocean are dirty, the ocean does not become dirty. See the good in people and help them. तो ये फेमस कोटेशंस थे गांधी जी के, जो उन्होंने बहुत सारे कहे थे, पर इनमें से ये सारे थे। लेट अस कंटिन्यू विद द कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव। Karl Marx underlined on the significance of a classless society. क्लासलेस सोसाइटी की बात करें, डी स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे देखो आप बात करें क्लासलेस सोसाइटी की, तो गांधी जी कार्ल मार्क्स बहुत क्लियर थे और वो क्लासलेस सोसाइटी की बात करते थे। एंड ही वांटेड द वर्किंग क्लास टू स्नैच अवे द कंट्रोल ऑफ इकोनॉमी फ्रॉम द एक्सप्लॉइटेटिव हैंड्स। पहले से इनको शंका बहुत पहले से रही है कि वर्किंग जो रिच है, बुर्जुआ क्लास है, वो हमेशा दिक्कत करते रहे। तो इनका कहना था कि एक वो समय आना चाहिए कि जो वर्किंग क्लास है वो रिच क्लास से सत्ता अपने पास ले ले और उसको आगे बढ़ाए।
He said once the condition of rich land owner or the bourgeois takes place, once the dilution of rich land owner, ये कह रहे हैं कि अगर जब अमीर लोग जो वो उनकी उनकी धन संपत्ति कम होने लगे, दौलत कम होने लगे, तो वर्किंग क्लास को फायदा होगा. And then Karl Marx talks about dictatorship of the proletariat plus collective ownership of major industries, commercial establishment, and collective sharing of the profits for their own capital accumulation. डिक्टेटरशिप की बात करते हैं, कॉल मार्क्स बोलते हैं, और इसमें कलेक्टिव ऑनरशिप की बात करते हैं, और फिर प्रॉफिट शेयरिंग की बात करते हैं. शुरू से उनका मानना था कि कोई एक्यूमुलेशन किसी एक हाथ में नहीं होना चाहिए. Students, we see further about Gandhi's Sarvodaya Society was being made as a benchmark for the egalitarian and welfare society premised on economic equality की बात करें तो गांधी जी सर्वोदय सोसाइटी की बात करते हैं, जहाँ पे वो egalitarian हो, वेलफेयर सोसाइटी की बात हो, जहाँ पे सबको लाभ हो और समानता आए. The approach of Gandhi, which is mass, was inclusive. He advocated about the constructive role for the rich landowners to donate their surplus share land with the downtrodden and the needy people of the cross sections of the society. गांधी जी का कहना था भाई कि इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो जो रिच लोग थे वो भी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो लोगों के लिए हेल्प कर सकते हैं, लैंड जिनके पास लैंड दे सकते हैं, जिनके पास कुछ और प्रॉपर्टी वो डोनेट कर सकते हैं, भूदान कर सकते हैं. बहुत सारे वो इतने एक्सक्लूसिव नहीं थे, इतने सरकास्टिक नहीं थे रिच क्लास को लेकर जितने कि कार्ल मार्क्स थे, पर गांधी जी चाहते थे कि उनका रोल रिच लोगों का हो सोसाइटी में. लेट अस सी एनालिसिस. अब विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं. इन टुडेज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड बोथ द फिलोसफर्स इन देयर पर्सपेक्टिव फील्ड्स फाइंड देयर रिलेवेंस. स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं तो अब देखो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में काफ़ी इनका रिलेवेंस है. वन हैज़ सब्जेक्टिव रिलेवेंस वाइल द अदर हैज़ ऑब्जेक्टिव रिलेवेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशंस एंड डिपेंडिंग अपॉन द इंटरप्रिटेशंस. कि समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार दोनों के अपनी अपनी मान्यताएं हैं. कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी जी के नो डाउट कार्ल मार्क्स वॉज ए ग्रेट टाइमली थिंकर एंड फिलोसफर हु रेप्यूटेटेड टू टो डाउन बिफोर द कैपिटलिस्ट सोसाइटी फॉर एक्सप्लॉइटेशन. इसमें बिल्कुल कहने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो कार्ल मार्क्स वो नहीं चाहते थे कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एक अमीर के हाथ में हो और वो वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करे. गांधी जी यूज्ड टू बिलीव इन ट्रूथ, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, स्पिरिचुअलिटी. इन सब तरीके से समाज में वो बदलाव लाना चाहते थे. एंड नेवरदलेस ऑफ देयर डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज and approaches in their thoughts, processes and perspectives about the society. तो यहाँ पे इस परिप्रेक्ष्य में अगर गांधी की बात करें तो इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार से दोनों में समानताएं, दोनों में डिफरेंसेस, दोनों में वो चीज़ जो कि अपने अपने व्यूज़ होते हैं, तो अपना इनका एक पर्सपेक्टिव था बात करने का, और अपनी इनकी आवश्यकताएँ थी जिनके आधार पर इन्होंने ये सारी चीज़ें की. गांधी जी हमेशा लव, अफेक्शन और ह्यूमैनिटी की बातें करते रहे, और उनका बहुत बड़ा एक रोल इस परिप्रेक्ष्य में नहीं था, इस संदर्भ में क्लास वार को लेकर जो मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स क्या करते थे. लेट अस कंक्लूड नाउ. टू कंक्लूड इट इज़ टू स्टेट दैट इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन थॉट्स and ideas in their approach, there were similarities as well as regarding the state and the society. and दोनों में अगर देखा जाए तो उनके थॉट्स में, सोसाइटीज़ में, तो इसमें बहुत सारी समानताएं भी हैं, डिफरेंसेस भी हैं. इट इंटायरली डिपेंड्स एज टू हाउ द सोसाइटी ऑफ द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड व्यूज बोथ इन दियर पर्सपेक्टिव परसीव नोशंस. अगर देखा जाए तो दोनों ही अपने अपने अपनी सोच है, अपने विचार हैं गांधी जी और कार्ल मार्क्स के, और दोनों ने ही इसमें कंट्रीब्यूट किया है समाज में. सो वी कैन नॉट से दैट contribution is not their contribution is too heavy from their perspective. They are great leaders, they have been, and they will continue to be so. They were great leaders of their time, they are still great leaders, and generations will remember them because of their great contributions, what they have done to the society, what they had practiced and set benchmark. And that was many things were modified and taken for
incorporation in different countries, and many were still being practiced. All these things conclude lead us to believe and then understand about their greatness and contributions. Dear students, in this video you will see the content from your own perspective of content is you can adjust accordingly. uh, my talks regarding on this talks are in different perspectives, but I've tried to analyze all this, and hopefully it will be quite useful for all of you from exams perspective, as exams are very much around the corner. Hope it will solve your problem, and then you will try to fetch maximum marks. Thank you very much.